So nothing much questions from the scalp as such. You should be just knowing all the layers. ठीक है? Scalp में अगर हम बात करें तो some of the area is supplied by your trigeminal nerve again. तो आप can you appreciate the diagram here? Here is V1, that is ophthalmic. Here is V2, that is palpebral fissure, and here is V3. V2 that is your ophthalmic, and V3 is mandibular. ठीक है? तो पूरे face का sensory sensation is taken up by your trigeminal nerve. पूरा इस एरिया में जितने भी senses हैं, आपको यहाँ pinch हो रहा है, आपको corneal reflex आ रहा है, आपको यहाँ गर्म लग रहा है, all are taken by your trigeminal nerve. That's why trigeminal neuralgia में क्या होता है? There is tickling sensation more over the cheeks of the face. ठीक है? थोड़ी सी भी हवा लगे तो यहाँ पर दर्द होती है. So basically your ophthalmic and maxillary part is affected in your trigeminal neuralgia. और trigeminal neuralgia का दूसरा नाम क्या होता है बताओ? Anyone, if anyone knows, what is the another name of Tic-Dolox. Further Gills disease is another name of trigeminal neuralgia. ठीक है? And उसमें क्वेश्चन आ जाता है trigeminal neuralgia में जो है हमारी कौन सी nerve more affected होती है? Which nerve of the trigeminal nerve is more affected? It will be your ophthalmic as well as maxillary. और इसमें ज्यादा क्या होता है? पेन ओवर योर चीक्स रहता है. जैसे थोड़ा सा भी अगर some person is doing a shave तो भी पेन हो रहा है, और some person is थोड़ा सा हवा लगी चीक्स पे तो भी पेन हो रहा है. Why? इस एरिया में क्यों पेन हो रहा है? क्योंकि हमारी जो नर्व अफेक्टेड हुई है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में, that is basically taking sensation from this area only. That's why trigeminal neuralgia में जो पार्ट ट्राइजेमिनल नर्व हमारी सप्लाई करती है, जहां से सेंसेस लेती है, वहां पर दिक्कत आती है. अब इस एरिया से सेंसेस जब ट्राइजेमिनल नर्व ले रही है, सो यू कांट से कि फेशियल नर्व के डैमेज होने पर इस एरिया में दिक्कत आएगी. फेशियल नर्व के डैमेज होने पर बेल्स पाल्सी होगा. फेशियल नर्व के डैमेज होने पर जो प्रॉब्लम्स फेशियल नर्व के थ्रू होती हैं वो होंगी. जिस एरिया को फेशियल नर्व सप्लाई करती है वो एरिया अफेक्टेड होगा. लाइक फेशियल नर्व सप्लाइज योर ऑर्बिकुलरिस oculi muscle, your muscles of the face, your orbicularis oris. So there will be a drooping of the mouth. ठीक है? There will be ptosis of the eyelid. ठीक है? There will be a person cannot blow the a person cannot whistle, person cannot blow क्योंकि हमारी vaccinator supply नहीं हो रही है. हमारी face की muscles flaccid हो गई हैं. हमारी face की muscles को nerve supply नहीं मिल रही है. So वो एकदम से ऐसे the face will move down. ठीक है? तो facial nerve is different, trigeminal nerve is different. अच्छा, you can very well appreciate here in the diagram, and even they can ask you that the pinna is this one. ठीक है? So pinna की sensory supply किससे होती है? Pinna की sensory supply is by your mandibular nerve. Pinna की sensory supply is by your mandibular nerve. Even Mandibular nerve. Mandibular nerve. You can see that pinna is supplied by mandibular nerve, and even they can ask you that your ala of the nose is supplied by Maxillary nerve. maxillary, and tip of the nose by Ophthalmic nerve. Ophthalmic nerve. Three questions can come, और इन सब का आंसर ट्राइजेमिनल नर्व ही रहेगा. ठीक है? तो ये जनरल बात थी. दिस इज स्कैल्प पे कोई इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है. Next is you should be knowing that this aponeurotic layer is Galea aponeurotica, जो आपकी frontal belly और आपकी occipital belly को join करती है. That is your Galea aponeurotica. ठीक है? One more person has joined us. May I know your name? Shazima? So it is Shazima. Hi Shazima. Am I audible to you? Hello, ma'am. Okay. Fine. Good. So we'll continue. So this is your occipital belly. This is your frontal belly of occipitofrontalis muscle, and this is your Galea aponeurotica that is joining them both. ठीक है? अब जो हमारी स्कैल्प की नर्व सप्लाई होती है, दैट इज बाय योर सुप्राट्रोक्लियर नर्व एंड सुप्राऑर्बिटल नर्व. हमने कल पढ़ा है ऑप्थेल्मिक नर्व की ये दोनों ब्रांचेस होती है.
Zygomaticotemporal nerve and auriculotemporal nerve. Auriculotemporal nerve we have studied yesterday. Auriculotemporal nerve is a branch of which? Mandibular nerve, correct? It is going to take sensory sensation from which area? Auriculotemporal nerve from the temple area, ठीक है? तो ये हमारी होगी zygomatic-temporal nerve एंड ये हमारी होगी सुप्राट्रोक्लियर और सुप्राऑर्बिटल. सो दिस इज बेसिकली आपके स्कैल्प किस किस नर्व से सप्लाई हो रहा है, दैट इज zygomatic-temporal, supratrochlear, supraorbital, getting auriculotemporal. So the temple is supplied by your auriculotemporal nerve. Temple is also your TMJ is also supplied by your auriculotemporal nerve. ठीक है, this thing should be known. Next we come to the vessels again. So ये जो सा भी एरिया है वहां पर जो भी नर्व्स होती है वही आर्टरीज होती है, वही वेन्स होती हैं. सो सुप्राट्रोक्लियर नर्व के साथ साथ स्कैल्प को कौन सप्लाई कर रही है? सुप्राट्रोक्लियर और सुप्राऑर्बिटल आर्टरीज भी सप्लाई करती हैं. सो दीज आर आल्सो द वंस दैट आर सप्लाइंग योर स्कैल्प. अच्छा, पीछे की तरफ स्कैल्प में कौन सप्लाई कर रहा है? ऑसिपिटल आर्टरी. जो हमने कल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पढ़ी थी उसी की एक पोस्टीरियर ब्रांच होती है ऑसिपिटल आर्टरी, दैट इज सप्लाइंग योर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प. जस्ट सिंपल थिंग, सुप्राऑर्बिटल वेन, सुप्राट्रोक्लियर वेन, कल हमने पढ़ा है ना, मिलके एंगुलर वेन बनाती है एंड देन फेशियल वेन बनाती है. दे आर गोइंग टू बेसिकली सप्लाई योर स्कैल्प. ठीक है, supratrochlear, supraorbital, artery, nerve as vein, they are the major ones that are supplying your scalp anterior part. Okay? ये आपको पता होना चाहिए. lymphatic drainage, अच्छा कल हमने फेस की ड्रेनेज पढ़ी है, तो फेस की ड्रेनेज हमारी कौन से लिम्फ नोड से होती है? Parotid and cervical and mental lymph nodes. सबमेंटल लिम्फ नोड्स. ठीक है, मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, प्रीऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, preauricular लिम्फ नोड्स. ठीक है. Similarly, the drainage for your scalp is by your occipital lymph nodes. ठीक है, occipital lymph nodes supply करेंगे as well as your, so you can very well appreciate here in the diagram, this is supratrochlear artery. पूरा scalp जिससे supply हो रहा है, supratrochlear artery, supratrochlear vein, supraorbital artery, supraorbital vein, superficial temporal artery, superficial temporal vein. पीछे की तरफ ये आ गई हमारी posterior auricular vein, posterior auricular artery, occipital vein, occipital artery. ठीक है, so these are the ones that are supplying your scalp. ठीक है. Then comes your lymph nodes. Lymph nodes कौन कौन सी होती हैं स्कैल्प के लिए? पीछे से हमारी होगी, ये होगी हमारी upper deep cervical lymph nodes as well as your occipital lymph nodes. Back of the head is supplied by your occipital lymph nodes और post auricular lymph nodes, यहाँ post auricle, auricle के पीछे वाला area is supplied by upper deep cervical lymph nodes. Done. Next we come to your orbit. ठीक है, so scalp में basically आपको पता होना चाहिए nerve supply किससे हो रही है, arterial supply किससे हो रही है, lymphatic drainage किससे हो रहा है और venous supply क्या हो रही है. Common जो हमने face में पढ़ा है उसी की है extensions है. There is nothing new and not even the much questions are asked from this topic scalp. ठीक है, एक basic understanding होना चाहिए कौन कौन सी चीज supply कर रही है. Now the question is asked basically from your ऑर्बिट. ठीक है, ऑर्बिट से बहुत क्वेश्चन आता है. ऑर्बिट की मीडियल वॉल कौन सी है, ऑर्बिट की लेटरल वॉल कौन सी है, ऑर्बिट की रूफ कौन सी है, ऑर्बिट का फ्लोर कौन सा है, ऑर्बिट के अंदर कितनी कैनाल्स हैं, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्या क्या पास करता है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्या क्या पास करता है, ऑप्टिक कैनाल से क्या पास करता है, मसल्स ऑफ द ऑर्बिट को कौन सप्लाई करता है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को कौन सप्लाई करता है. ठीक है, उसके बाद आपकी सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इनको कौन सप्लाई करता है. ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, इनको कौन सप्लाई करता है, इन मसल्स का फंक्शन क्या है. So these are the questions that are asked from the orbit. So आज के लेक्चर का मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है, which of the following is the weakest wall of the orbit. ठीक है, so weakest wall is your medial wall of the orbit. Medial wall. और अगर आपके पास ऑप्शन में medial wall नहीं है then floor of the orbit. ठीक है, so that is the weakest part of your orbit. ठीक है, और आपको if we move out from the anatomy
देन और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ओरल सर्जरी में से भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन हो सकते हैं. व्हाट इज एक्सोप्थैल्मोस, दैट इज आपकी आईबॉल बाहर आ रही है. व्हाट इज एनोप्थैल्मोस, दैट इज योर आईबॉल अंदर की तरफ चली गई. व्हाट इज ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर, क्या हो रहा है कि एक तो आपकी आईबॉल अंदर चली गई, ऊपर से दैट हैज इवन मूव्ड डाउन, मतलब पूरा फ्लोर को तोड़ करके दैट आईबॉल हैज मूव्ड डाउन. ठीक है, दैट इज योर आईबॉल फ्रैक्चर ऑर्बिटल. सो ये थोड़ा सा हमारा ओरल सर्जरी का पार्ट हो गया. सो आज यहाँ पर हम एनाटॉमी की बात करेंगे. ठीक है, so you can very well appreciate here the orbit. ठीक है, even I think so HPSC में ये क्वेश्चन आया था, which forms the medial wall of the orbit or which of the following bone is not involved in the wall of the orbit. ठीक है, so आप देखेंगे यहाँ पर हमारा greater wing of the sphenoid आ रहा है. This is your superior orbital fissure, this is your lesser wing of the sphenoid, this is your frontal bone, this is your optic canal, and we have just talked yesterday. Optic canal से कौन सी nerve pass होती है? Just tell me again. ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व. ठीक है, यहाँ पर इथेमोइडल फोरामिना भी है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथेमोइडल फोरामिना. इनसे हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर इथेमोइडल नर्व्स पास करती हैं. ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथेमोइडल नर्व्स आर अगेन अ ब्रांच ऑफ योर ट्राइजेमाइनल नर्व. ठीक है, उसके अलावा दिस इज योर ऊपर वाली बोन होगी हमारी. तो बेसिकली यहाँ पे ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड भी है. ठीक है, यहाँ पर हमारी ऑर्बिट की मीडियल वॉल पे क्या आ गई, जाइगोमेटिक बोन आ गई. ठीक है, ये हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, तो ये हमारा क्या है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है. ये मैक्सिला हो गया हमारा, बीच में पैलेटाइन बोन भी आ रही है. ठीक है, कैन यू अप्रिशिएट, दिस इज अ लेक्राइमल बोन. यहाँ पर लेक्राइमल बोन भी आ रही है, लेक्राइमल ग्रूव भी आ रहा है, इथेमोइड बोन भी आ रही है, पर कहीं पर भी इसमें नेजल बोन नहीं आ रही है. So even a question was there in HPSC that which of the following doesn't form a part of the orbit? Answer will be your nasal bone. Nasal and bone. even there was a question, if I remember, which of the following is a part of the orbit? The greater wing of the sphenoid तो याद रहता है, but lesser wing is also a part of the orbit. ठीक है, तो sphenoid का greater wing और lesser wing both are the part of the orbit. ठीक है, so these are the questions that can be basically framed from the orbit. ठीक है, ब्लो आउट फ्रैक्चर क्या होता है? दिस इज ब्लो आउट फ्रैक्चर. पूरा जैसे बॉल नहीं आगे, बॉल लग गई, अंदर गया, इंट्रा ऑर्बिटल प्रेशर बढ़ा, फ्लोर टूट गया और आईबॉल नीचे सिंक कर गई. सो दैट इज योर ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट. आप ओरल सर्जरी में पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. तो ये सब वॉल्स हैं, इतनी तो आप याद भी नहीं रख सकते, बट यू शुड बी नोइंग बेसिक मीडियल वॉल किससे बन रहा है, लेटरल वॉल किससे बन रहा है. ठीक है, इस तरीके से पता होना चाहिए. नेक्स्ट वी कम टू एंटीरियर और पोस्टीरियर इथेमोइडल फोरामिना भी यहाँ पर होते हैं. ठीक है, अच्छा, जो हमारा ऑर्बिट का जो फ्लोर होता है ना, that is also a roof of the maxillary sinus, उसके ऊपर ही होता है. ठीक है, तो जब आपका ब्लो आउट फ्रैक्चर होगा ना, तो यू विल सी कि जो साइनस की रूफ है वो टूट चुकी है. ठीक है, अच्छा, साइनस की रूफ टूटती है ब्लो आउट फ्रैक्चर में. फ्लोर कब टूटता है हमारा, जब ओरोएंट्रल फिस्टुला बनता है. वो कब बनता है, व्हेन वी आर एक्सट्रैक्टिंग द मोलर्स. ठीक है, ओरोएंट्रल फिस्टुला का ट्रीटमेंट क्या है, इफ दैट इज स्मॉलर तो हम उसको वैसे छोड़ देते हैं. ठीक है, इफ इट इज लेस देन 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ओरोएंट्रल फिस्टुला पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. एंड इवन दे कैन आस्क यू कि अगर कोई फिस्टुला है तो वो क्रोनिक कब होता है, जब मतलब इट इज एक्यूट और क्रोनिक. सो व्हेन डज द ओरोएंट्रल फिस्टुला बिकम्स क्रोनिक, जब उसको हुए भी 14 डेज हो जाते हैं और वो फिर भी क्लोज नहीं होता है, देन दैट बिकम्स क्रोनिक. तो यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, तो हम एनाटॉमी पढ़ते पढ़ते थोड़ा ओरल सर्जरी में भी चले गए. But this is how your approach should be. You should cover the topic from all aspects. अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो जल्दी हो जाता है if you will read it from the point of view of other subject also. Next is your lateral wall हो गया हमारा. Orbicularis oculi. ठीक है, all the muscles of the face are supplied by your facial nerve. You know this thing. So orbicularis oculi again is supplied by your facial nerve. ठीक है, तो ये ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई है.
इसका ऑर्बिटल पार्ट है जो ऑर्बिट की तरफ है, और इसका पैल्पेब्रल पार्ट है जो अद्दर की तरफ है, और इसका एक मीडियल पार्ट है दैट इज योर मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट, और लेटरल पार्ट है दैट इज योर लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट। बस आपको इतना पता होना चाहिए। एंड दिस होल इज सप्लाइड बाय योर फेशियल नर्व। ठीक है, नेक्स्ट इज योर आई में ये हमारी होती है, इफ यू कैन अप्रिशिएट, दिस इज अ टेंडन ऑफ लिवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस। ठीक है, and levator palpebrae superioris is supplied by which nerve? Oculomotor nerve. ठीक है, levator palpebrae superioris is supplied by your oculomotor nerve. This is orbital septum. ठीक है, and this is how it is. You should be knowing the diagram that this is your tendon of levator palpebrae superioris, this is your orbital septum, this is your superior tarsus, this is your inferior tarsus, this is your medial palpebral ligament, this is your lateral palpebral ligament, and this is orbital septum. That's it, nothing much is required from here. And अच्छा, टार्सल ग्लैंड का अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो दैट इज चलेजियन। ठीक है, टार्सल ग्लैंड यहाँ पर होती है ऑर्बिट में। अगर टार्सल ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाता है सो दैट लीड्स टू योर चलेजियन। और अगर आपकी सिबेशियस ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाता है दैट लीड्स टू योर स्टाइल। ठीक है, सो दिस इज अ टार्सल ग्लैंड, देख रहे हो, दिस इज अ टार्सल ग्लैंड। अगर इस ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होता है so that is called as chalazion। ठीक है, और इसके नीचे sebaceous gland है। ठीक है, यहाँ पर अगर sebaceous gland में inflammation हो जाता है that is called as stye। normally stye हो भी जाता है ना due to infection and all, so stye और chalazion पता होना चाहिए। if it is a tarsal gland it's chalazion, and if it is a sebaceous gland it's a stye। okay, next we come here. Again, the orbit is supplied by your supratrochlear and supraorbital artery and vein। ठीक है, सिंपल सी ये चीज है, you should be knowing। and नीचे वाला पार्ट infraorbital artery से होता है, simple thing, nothing much in that। and nerve supply again supratrochlear nerve, supraorbital nerve, ठीक है, lacrimal nerve, ये सब आपकी उसकी ब्रांचेस हैं ट्राइजेमाइनल की, और इंफ्राऑर्बिटल नर्व। ठीक है, so this is the nerve supply completely, supratrochlear, supraorbital, lacrimal, infraorbital। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑर्बिट की नर्व सप्लाई, वीनस सप्लाई और आर्टेरियल सप्लाई। इसके बाद आ जाता है हमारा लेक्राइमल ग्लैंड। तो आप ये साइड पे देख रहे हैं, दिस इज अ लेक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड में आपका क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ पर होती है लेक्राइमल डक्ट्स। ठीक है, यहाँ से टीयर्स बनते हैं और आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर होता है लेक्राइमल पंक्टम। ठीक है, लेक्राइमल कैनालिकुलाई के थ्रू, लेक्राइमल सैक के थ्रू नीचे इसकी क्या होती है, नेजल लेक्राइमल डक्ट दैट ओपन्स इनटू योर नोज। तो आपको ये पूरा पाथ पता होना चाहिए दैट लेक्राइमल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द लेटरल, यहाँ पर लेटरल साइड ऑफ द ऑर्बिट पे होता है। देन लेक्राइमल यहाँ पर हमारे लेक्राइमल कैनालिकुलाई होते हैं जो पूरा टीयर्स वगैरह को इकट्ठा करते हैं। एंड देन लेक्राइमल सैक में जाता है टीयर, और फिर नेजो लेक्राइमल डक्ट होती है जिसके थ्रू, नोज के थ्रू टीयर्स कम आउट। ठीक है, नेजोलेक्राइमल डक्ट ओपन कहाँ पर होती है, इंफीरियर मीटर्स ऑफ द नोज। दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजुअली आस्क्ड, वेयर इज द नेजोलेक्राइमल डक्ट ओपन। ठीक है, इंफीरियर मीटर्स ऑफ द नोज। नेक्स्ट इज योर दैट्स इट। तो ये पूरा रहा। ठीक है, लेक्राइमल कैनालिकुलाई है, ये लेक्राइमल सैक है, और ये नेजोलेक्राइमल डक्ट है। ठीक है, नोज के इंफीरियर मीटर्स में ये ओपन हो जाता है। ठीक है, so इतना आपको पता होना चाहिए। द लेक्राइमल सैक टीयर्स ड्रेन बाय नेजोलेक्राइमल डक्ट इनटू द नेजल कैविटी। ठीक है, नेजोलेक्राइमल डक्ट के थ्रू नेजल कैविटी में आते हैं टीयर्स। ठीक है, इसके बाद आई में नॉर्मल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्क्लेरा। ठीक है, दिस व्हाइट पार्ट इज नोन एज स्क्लेरा।
दिस सेंट्रल ब्लैक पार्ट इज नोन एज प्यूपिल. इसके अराउंड जो है दैट इज आइरिस, और पूरी आई को एक थिन सी शीट कवर करती है, जैसे अनियन को नहीं कवर करती, दैट इज नोन एज योर कॉर्निया. Simple, nothing much question. Even the question if can be asked is clear eyes of which color? White. jaundice में किस कलर का हो जाता है? jaundice में yellow. Yellow. फिजियो में ये क्वेश्चन आ जाता है. Why yellow? Because of the more bilirubin in the body. ठीक है. And Blue since it is skin the also. whitest part, ये सबसे पहले होता है और पता भी सबसे पहले लगता है. ठीक है. And next here we come to yours nasolacrimal duct. Can you appreciate it opens into the inferior meatus of the nose. ठीक है. Next is yours. We'll talk about now the muscles of the orbit as well as your simple. देखिए ऑप्टिक कैनाल से क्या पास होती है? ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी. Optic ठीक nerve. है, क्लियर. और जो आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है वहां से क्या क्या निकल रहा है? दैट इज योर ट्रोक्लियर नर्व, frontal branch of the ophthalmic nerve V1. ठीक है, V1 passes through the superior orbital fissure. Lacrimal branch of the ophthalmic nerve, ये भी याद रखना है, that is your superior orbital fissure. Your superior ophthalmic vein the superior orbital fissure से पास करेगी. Inferior ophthalmic vein passes through your inferior orbital fissure. कल भी हमने पढ़ा है that angular vein से cavernous sinus किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? By your superior ophthalmic vein. Superior ophthalmic vein. है ना, the question is usually asked. वो कहाँ से पास करती है? Through the superior orbital Superior fissure. orbital अच्छा, fissure. अब ये होता है आपका बीच वाला पार्ट. ठीक है, यहाँ से क्या क्या पास होता है? ओक्यूलोमोटर नर्व. ठीक है, योर एब्ड्यूसेंट नर्व. ठीक है, नेजोसिलियरी ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक नर्व और इंफीरियर ब्रांच ऑफ द ओक्यूलोमोटर नर्व. तो मैं इसको कैसे याद रखती हूँ? बाय द निमोनिक MONA. M से मतलब मिडल पार्ट, O से हो गया ओक्यूलोमोटर नर्व. ठीक है, ओक्यूलोमोटर की कौन सी ब्रांच होगी? सुपीरियर और इंफीरियर. ठीक है, N से क्या हो गया? नेजोसिलियरी. और A से क्या हो गया? एब्ड्यूसेंट. सो आपको ये पूरा सेंटर वाला पार्ट बाय दिस निमोनिक MONA से आपको क्लियर हो गया कि आपकी ओक्यूलोमोटर हो गई, नेजोसिलियरी और ये एब्ड्यूसेंट हो गई. ठीक है, और सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन तो आपको याद ही होगी कि ये ऊपर है यहाँ पर. इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन भी आपको याद होगी. और आपको क्या याद रखना है? ट्रोक्लियर. और दूसरी आपको याद रखनी है योर फ्रंटल एंड लेक्राइमल ब्रांच ऑफ योर ऑप्थेल्मिक नर्व. तो इस तरीके से आपको सारा याद हो गया कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्या क्या निकलता है. और बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है. इवन द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि ऑप्टिक नर्व कहाँ से पास होती है? दैट इज नेवर बाय योर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, दैट इज ऑलवेज बाय योर ऑप्टिक कैनाल. ठीक है, Canal. सो MONA इज द निमोनिक. कि आप नीचे वाला पार्ट याद रख ले. और अगर आपको फिर भी भूलता है तो आपको पता होना चाहिए कि आई को ओक्यूलोमोटर सप्लाई करती है, एब्ड्यूसेंट करती है और ट्रोक्लियर करती है. तो मिडल में सारा हो गया, ओक्यूलोमोटर भी हो गया, एब्ड्यूसेंट भी हो गया. तो ट्रोक्लियर कहाँ पर रह गया? ऊपर. तो ट्रोक्लियर और ऑप्थेल्मिक याद रख लो, दैट्स इट. और सुपीरियर वाली ऑप्थेल्मिक वेन ऊपर है, इंफीरियर वाली ऑप्थेल्मिक वेन नीचे. सो द थिंग्स बिकम सिंपल बाय मेकिंग अ निमोनिक. ठीक है, क्लियर, डन. लेट्स मूव आगे. ठीक है, तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्या क्या पास हो रहा है? ओक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व, लेक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व, नेजियोसिलियरी ब्रांचेस. लेक्राइमल, फ्रंटल और नेजियोसिलियरी तीनों ब्रांचेस ऑफ द ऑप्थेल्मिक नर्व which is the first branch of your trigeminal nerve passes from your superior orbital fissure. ठीक है, और superior ophthalmic vein. inferior orbital fissure से आपकी inferior ophthalmic vein हो गई. ठीक है, और क्या हो गया आपका यहाँ पर? इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से मैक्सिलरी नर्व एंड इट्स ज़ाइगोमैटिक ब्रांच एंड इंफ्राऑर्बिटल वेसल्स. ये आप थोड़ा बहुत बाद में पढ़ लेंगे, इसको तो इसमें कोई क्वेश्चन आता नहीं है. नेक्स्ट वी कम हियर टू योर ऑर्बिट. एंड ऑर्बिट के अंदर आपको ये पता होना चाहिए. देखिए ये क्या है? सुपीरियर रेक्टस मसल है. ये क्या है? इंफीरियर ऑब्लिक मसल है. ठीक है, ये क्या है? ऑर्बिटल सेप्टम है, सस्पेंसरी लिगामेंट है, inferior oblique है, superior oblique है. So these muscles are something that you should be knowing कि orbit, जैसे हमने face की muscles पढ़ी है कल, इसी तरीके से ये सब orbit की muscle है. If we take it from this view, तो आप देखिए medial rectus है, lateral rectus है, inferior rectus है, inferior oblique है. ठीक है, और अगर हम इसको और बारीकी से देखें तो हमारा क्या होता है? ये हो गया lateral rectus, medial rectus. मतलब these all are the muscles of the eye that you should be knowing. That's it, nothing much point. आगे एक डायग्राम में I'll clear you किस मसल का क्या फंक्शन है. अच्छा, आई की जो है there are two types of muscle.
एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मसल होती है एक्स्ट्राओक्यूलर मसल। एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स वो होती हैं जो आई बॉल की मूवमेंट को या आईलिड को खोलने या बंद करने में हेल्प करती है। इंट्रिंसिक होती है जो प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन को कंट्रोल करती है। सो दीज आर द मसल्स ऑफ योर आईलिड। और जितनी भी एक्सट्रिंसिक हैं दे आर सप्लाइड बाय योर ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये आपको याद रखना है। एक दो एक्सेप्शन जो है सुप्राओब्लिक और लेटरल रेक्टस, दैट इज अ डिफरेंट, ठीक है। एंड जो ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई है दैट इज सप्लाइड बाय योर फेशियल नर्व, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एंड हियर वी कम टू द मसल्स, ठीक है। मसल्स के बहुत सारे रोल्स होते हैं, लाइक दे कैन ईदर लीड टू एडक्शन, एबडक्शन, एलिवेशन और डिप्रेशन, और इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। ये 5 या 6 फंक्शंस हैं जो आई की मसल्स करती हैं। कौन सी मसल एलिवेशन करती है, कौन सी डिप्रेशन करती है, कौन सी एडक्शन करती है, कौन सी एबडक्शन करती है, कौन सी ये करती है, आपको बताना चाहिए। सो देयर इज अ निमोनिक हियर दैट इज नोन एज RAD। ऑल द रेक्टस मसल डू एडक्शन। एडक्शन का मतलब मीडियली, आई को कहाँ लेकर के आ रही है, मीडियली लेकर आ रही है। सो एक्सेप्ट योर लेटरल रेक्टस। तो मीडियली सारी रेक्टस मसल आपकी क्या लेके आएंगी, आई को मीडियली, ठीक है। लेकिन आपकी जो लेटरल रेक्टस है दैट विल टेक द आई टुवर्ड्स द लेटरल रेक्टस लेटरली, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सो हियर वी कम, मतलब सारी रेक्टस मसल का मतलब क्या हो गया आपकी, जैसे कि मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर रेक्टस, ये तीनों रेक्टस मसल आई को कहाँ लेकर के जाएंगी, मीडियली। एक्सेप्ट योर लेटरल Medially. रेक्टस जो कहाँ पर लेके जाएगी आई को, लेटरली। तो RAD इज Laterally. जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि सारी रेक्टस मसल आई को कहाँ लेकर के जा रही है, मीडियली। लेटरल रेक्टस लेके जा रही है लेटरली। लेटरली का मतलब क्या है, बाहर की तरफ, और मीडियली का मतलब क्या है, नोज की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। सो दिस थिंग यू शुड बी नोइंग। नेक्स्ट वी कम हियर सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक है। सुपीरियर रेक्टस कहाँ लेके जाएगी आई को, ऊपर की तरफ। इंफीरियर रेक्टस कहाँ लेके जाएगी, नीचे की तरफ, ठीक है। सुपीरियर रेक्टस अपवर्ड, इंफीरियर रेक्टस डाउनवर्ड, ठीक है। जो लेकिन ऑब्लिक उल्टा होगा, सुपीरियर ऑब्लिक डाउनवर्ड लेके जाएगी, इंफीरियर ऑब्लिक अपवर्ड लेके जाएगी, ठीक है। सुपीरियर ऑब्लिक डाउनवर्ड लेके जाएगी, इंफीरियर ऑब्लिक अपवर्ड लेके जाएगी, ठीक है। सो हियर वी कम टुवर्ड्स द थिंग्स, लुक। तो ये रही मसल आपकी, ठीक है। सो सुपीरियरली आपकी सुपीरियर रेक्टस लेके जाएगी, इंफीरियरली इंफीरियर रेक्टस लेके जाएगी, मीडियली कौन कौन सी लेके जाएंगी आपकी, ऑल द रेक्टस मसल्स, ठीक है। और लेटरली कौन सी लेके जाएगी, और लेटरल Lateral rectus and inferior superior oblique. oblique will cause internal rotation, inferior oblique will cause external rotation। ये आपको पता होना चाहिए। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा कौन सी मसल क्या कर रही है, you should be knowing, ठीक है। superior oblique is your internal rotation, inferior oblique is your external rotation। I think I've told थोड़ा सा उल्टा। superior oblique is internal rotation, inferior oblique is एक्सटर्नल रोटेशन। सो यहाँ पर आप आई की जब मूवमेंट देखेंगे इस डायग्राम में तो आपको पता चलेगा, लुक ऐसे होगा। जैसे आपकी मसल ये है हमारी सुपीरियर रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस क्या करेगी, मैंने आपको बताया, फर्स्टली इट इज सुपीरियर रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस क्या करेगी, ऊपर लेके जाएगी, दैट इज योर अपवर्ड, ठीक है। दैट इज योर अपवर्ड, ऊपर लेके जाएगी। और दूसरा जो आपकी सुपीरियर रेक्टस है वो दूसरा, सिंस इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रेक्टस मसल, तो ये कहाँ लेके जाएगी, Medially. Medially. and inferior rectus will again come downward and laterally. Lateral rectus will look laterally, नहीं medially आएगी ये। चलो छोड़ो, lateral rectus will take the eye laterally, medial rectus will take the eye medially, inferior oblique क्या करेगी, इंफीरियर ऑब्लिक अपवर्ड भी लेके जाएगी और मीडियली लेके जाएगी, और सुपीरियर ऑब्लिक क्या करेगी, डाउनवर्ड लेके जाएगी और मीडियली लेके जाएगी। सो आई विल आल्सो क्लियर दिस once again to you. So this is how the muscles will work, ठीक है। तो हम एक ये टेबल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें पता चलेगा। देखो लेटरल रेक्टस कहाँ लेके जाएगी, लेटरली,
ठीक है, मीडियल रेक्टस कहाँ लेके जाएगी, मीडियली, क्लियर थ्रू दिस डायग्राम। सुपीरियर रेक्टस कहाँ लेके जाएगी, एक तो ऊपर लेके जाएगी, एंड सिंस इट इज अ रेक्टस मसल इट विल Upward. टेक इट मीडियली, सो सुपीरियर Medially. एंड मीडियली बाय योर सुपीरियर रेक्टस, क्लियर Yes. डन। जो मैंने कंसेप्ट बताया वही याद रखेंगे। नेक्स्ट इज योर इंफीरियर रेक्टस, सिंस इट इज अ रेक्टस इट विल टेक मीडियली, एंड सिंस इट इज एन इंफीरियर रेक्टस इट विल टेक इट डाउनवर्ड। Downwards. अच्छा, जो अच्छा सुपीरियर रेक्टस आईबॉल को ऊपर लेके जाती है, लेकिन द अनदर मसल इंफीरियर वाली इंफीरियर ऑब्लिक लेके जाएगी आईबॉल को, Oblique. ठीक है, ऊपर. इंफीरियर ऑब्लिक लेके जाएगी, सो इंफीरियर ऑब्लिक विल टेक इट अपवर्ड्स, Upwards. And ठीक है, superior oblique will take it downwards. as well as superior oblique will take it downwards, ठीक है। Downwards. अब जो ऑब्लिक मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, लेटरली लेके जाती हैं ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक विल टेक इट डाउनवर्ड्स एंड लेटरली, ठीक है, इंफीरियर ऑब्लिक विल अगेन डाउन टेक इट अपवर्ड्स एंड लेटरली, और जो रेक्टस मसल होती है आपको याद रखनी है वो मीडियली लेके जाती है, तो सुपीरियर रेक्टस अगेन विल टेक इट अपवर्ड एंड मीडियली, inferior rectus will take it downward and medially, ठीक है, हो गया क्लियर। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, which muscle is going to take it upwards, which muscle is going to take it downwards, which muscle is going to take it laterally, which muscle is going to take it medially, और अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए सुपीरियर रेक्टस का क्या फंक्शन है, सुपीरियरली एज वेल एज medially. ऑब्लिक्स का याद रखना है लेटरली लेके जाते हैं, रेक्टस का याद रखना है मीडियली लेके जाते हैं, Medially. एक्सेप्ट लेटरल रेक्टस व्हिच टेक्स इट लेटरली, ठीक है, और सुपीरियर रेक्टस ऊपर, इंफीरियर रेक्टस नीचे, ऑब्लिक इज अपोजिट, इंफीरियर रेक्टस ऊपर लेके जाएगी, सुपीरियर ऑब्लिक नीचे लेके जाएगी, ठीक है डन। और Yes, ma'am. जो हमारा इंटॉर्जन है दैट इज बाय योर इंफीरियर ऑब्लिक, एक्सटॉर्जन इज बाय सुपीरियर ऑब्लिक। इंटरनल रोटेशन क्या होता है कि मीडियली गई है आंख, ठीक है, इस तरफ, और एक्सटर्नल रोटेशन का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ गई है। तो इंटॉर्जन कौन सी मसल से हुआ है, एक्सटॉर्जन कौन सी मसल से हुआ है, दैट कैन अगेन बी आस्क्ड, आई थिंक आई हैव मार्क्ड इट आल्सो। So this is all about the muscles. Tomorrow we'll be covering your मतलब मैं कुछ MCQs डिस्कस करूंगी मसल से रिलेटेड ही, और बाकी we'll continue with the your arterial, venous and nerve or lymphatic, all that supply of the orbit, so we'll be finishing up with the orbit, okay. So any doubts for today part, if there are, you can ask. बताओ, किसी को कुछ पूछना है, क्लियर विद द थिंग्स, कौन सी मसल है और क्या फंक्शन है, यू शुड बी नोइंग, ठीक है। सुपीरियर ऑब्लिक का क्या फंक्शन है, इंफीरियर ऑब्लिक का क्या है, रेक्टस का क्या है, मीडियल रेक्टस का क्या है, लेटरल रेक्टस का क्या है, फ्लोर किसका बनता है ऑर्बिट में, रूफ किसका बनता है, मीडियल वॉल किसका बनता है, लेटरल वॉल किसका बनता है, मसल्स क्या है, आर्टीरियल सप्लाई क्या है, वीनस सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई क्या है, these are the simple things that you should be knowing। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्या क्या पास होता है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्या होता है, ऑप्टिक कैनाल से क्या पास होता है। So this is all that we have covered for today, and so that's it। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। Who is the new person with us? Is it Dimple? Hi Dimple, how are you? Am I audible to you, Dimple? So yeah, okay, shall I end the class now? समझ आया थोड़ा? Yes, ma'am. कल हम आज का पार्ट रिवाइज करेंगे एंड विल कंटिन्यू फिनिशिंग अप विद द ऑर्बिट, और एज वेल एज विल बी डूइंग 20 MCQs अगेन टुमारो, ओके फाइन। Okay, ma'am. So let's end the class, fine। Okay, ma'am.